اور دھاگے کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ملتان میں پاور لومز کی صنعت سے وابستہ افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ پاور لومز کے مالکان ممتاز آباد سڑک کو بلاک کرکے مظاہرہ کیا۔ پاور لومز مالکان نے مطالبات منظور نہ ہونے پر 1 مارچ سے دھرنا اور بھوک ہڑتال کی دھمکی دے دی۔ ماجد کلاسرا رپورٹ کریں گے۔ دھاگے کی قیمتوں میں اضافے پر صنعت سے وابستہ کاروباری لوگ حکومت کی پالیسی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ پاور لومز کے مالکان نے ممتاز آباد روڈ بلاک کر دیا۔ دھاگے اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ صنعت کاروں کا کہنا تھا کہ دھاگے کے 45 کلو گرام کے بیگ کی قیمت میں 15,000 تک اضافہ ہو رہا ہے۔ صنعتیں بحران کا شکار ہو رہی ہیں۔ موجودہ حکومت نے جو ہمارے دھاگے کی طرف یا پاور لوم انڈسٹری کی طرف سوتیلی ماں کا سلوک کیا ہے، اس کی وجہ سے اس وقت ہمارے جو 45 کے جی کا بیگ ہوتا ہے وہ 10 سے 15,000 روپیہ پر بیگ بڑھ چکا ہے، جس سے ہماری جو پیداواری لاگت ہے، ہماری پیداواری لاگت پر میٹر جو 15 روپے سے 20 روپے بڑھ چکی ہے۔ پاور لوم مالکان نے مطالبہ کیا کہ کپڑے کی ایکسپورٹ پر مکمل پابندی لگائی جائے۔ صنعت کاروں پر جو اضافی ٹیکس کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے اسے ختم کیا جائے۔ پہلے مہنگائی سے کاروبار ٹھپ ہو رہے ہیں اور حکومت دھاگے کے ریٹس کو مزید مہنگا کر رہی ہے۔ صنعتیں بحران کا شکار ہونے سے مزدوروں کا روزگار بھی ختم ہو رہا ہے۔ آج حکومت نے بجلی کے ریٹوں میں اضافہ کر کے اور دھاگے کی قیمتوں میں اضافہ کر کے مزدور کو ویسے ہی مار دیا ہے۔ آج ہمارے مزدور ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں بے روزگار ہیں۔ پاور لومز کے مالکان نے دھمکی بھی دی ہے کہ اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو 1 مارچ سے دھرنا اور بھوک ہڑتال کریں گے۔ آل پاکستان پاور لوم ایسوسی ایشن نے مطالبہ کیا کہ دھاگے کی ایکسپورٹ پر پابندی لگائی جائے اور دھاگے کی قیمت میں کمی واقع کی جائے۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ ماجد کلاسا، روہی، ملتان۔ جنوبی پنجاب کے پسماندہ علاقوں میں ہوگی جدید سڑکوں کی تعمیر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا تونستا میں سڑکوں کی بحالی کے لیے آسن اقدام۔ 138 کروڑ لاگت سے 2 نئی سڑکوں کی منظوری دے دی۔ جنوبی پنجاب کے پسماندہ علاقوں میں ہوگی جدید سڑکوں کی تعمیر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا تونسا میں سڑکوں کی بحالی کے لیے احسن اقدام 138 کروڑ لاگت سے 2 نئی سڑکوں کی منظوری دے دی۔ پی پی 285 اور 286 میں نئی سڑکیں بنے گی۔ ڈی جی خان چوکی والا سے اٹومک پلانٹ 17 کلومیٹر سڑک بنائی جائے گی، جس پر 870 ملین لاگت آئے گی۔ کوٹ کیسرانی بہوا میٹل روڈ کی مرمت کی بھی منظوری دی گئی۔ سڑک پر 466 ملین لاگت آئے گی۔ کوٹ کیسرانی بہوا جوک بدو اور لیترا تک سڑک کی مرمت کی جائے گی۔ منصوبوں پر کام جلد شروع کر دیا جائے گا۔ بہاولپوریوں کی صحت اور بہتر علاج معالجے کی جانب ایک اور قدم۔ پنجاب حکومت کا نوابوں کے شہر کو ایک نیا اسپتال کا تحفہ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی جانب سے 410 بیڈ پر مشتمل نیا اسپتال بنانے کی سمری کو کابینہ کو ارسال کر دیا گیا ہے، جبکہ کیبنٹ کمیٹی برائے فائنانس آئندہ اجلاس میں منظوری دے گی۔ بہاولپوریوں کی صحت اور بہتر علاج معالجے کی جانب ایک اور قدم۔ پنجاب حکومت کا نوابوں کے شہر کو ایک نیا اسپتال کا تحفہ دینے کا فیصلہ۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی جانب سے 410 بیڈز پر مشتمل نیا ہسپتال بنانے کی سمری کابینہ کو ارسال کر دی گئی۔ کابینہ کمیٹی برائے فائنانس مذکورہ اسپتالوں کے اگلے اجلاس میں منظوری دے گی۔ رحیم یار خان میں 1 سال بعد پھر سے ہوائی جہاز آئیں گے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے معطل ڈومیسٹک فلائٹس 1 سال بعد دوبارہ 8 مارچ سے شروع ہو رہی ہیں۔ رحیم خان چیمبر آف کامرس کی کاوشوں سے پہلے مرحلے میں کراچی سے رحیم خان اور کراچی کی فلائٹ کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ایئرپورٹ سے ملک کے بڑے شہروں کراچی، لاہور اور اسلام آباد سے رابطہ پی آئی اے کی فلائٹ سے رہتا تھا۔ کورونا وائرس نے 1 سال سے یہ رابطہ منقطع کیا ہوا تھا۔ رحیم یار خان میں فرٹیلائزر کمپنیاں، شوگر ملز اور فلورس ملز سمیت انڈسٹری کا وسیع نیٹ ورک ہونے کے باوجود 1 سال سے ڈومیسٹک فلائٹ بند ہونے پر شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ رحیم یار خان چیمبر آف کامرس کی جانب سے پی آئی اے حکام کے ساتھ مسلسل کاوشوں سے 8 مارچ سے فلائٹ آپریشن کراچی سے رحیم یار خان اور کراچی شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ صدر چیمبر آف کامرس خواجہ بشیر احمد کا کہنا ہے کہ ملک کے دیگر شہروں سے بھی فلائٹ آپریشن شروع کیا جائے۔ ہم نے اس سلسلے میں اپنا ڈسٹرکٹ مینیجر رحیم یار خان سی او کو پی آئی اے کو بھی لیٹر لکھا، نہ صرف لیٹر لکھا بلکہ اس کا فالو اپ بھی لیتے رہے۔ ہم نے ان کو بارہا یہ بات یقین دہانی کرائی کہ اس کو شروع ہونا چاہیے تاکہ ہمارا جو مسافر ہے، ہمارے جو تاجر ہیں، ہمارے جو انڈسٹریٹ ہیں، ان کو پرابلم آ رہی ہے۔ تو ہماری یہ سنوائی ہوئی اور آج ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہاں سے 8 مارچ سے فلائٹیں شروع کی جا رہی ہیں۔ پی آئی اے کی جانب سے فلائٹ آپریشن شروع کرنے کے اعلان کے بعد رحیم یار خان کی فضا میں پھر سے جہاز اڑیں گے، جس سے ملک کے بڑے شہروں کے ساتھ فاصلے کم ہونے سے صنعت کاروں اور تاجروں کو اپنے کاروباری معاملات جلدی حل کرنے میں مدد ملے گی۔ کیمرامین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ ملتان میں کوڑا کرکٹ اور گندگی ٹھکانے لگانے کے لیے ایک بھی ڈمپنگ پوائنٹ نہیں۔ شہر بھر کا کچرا اور گندگی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی گڑھے میں پھینکنے لگی۔
गंदगी और बदबू ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। सरदार अली खान रिपोर्ट करेंगे। कूड़ा क्रिकेट और गंदगी शहर औलिया का हुस्न खराब करने लगी। मुल्तान में जगह जगह गंदगी और कचरे के ढेर लग गए। ताफुन के सबब शहरियों का सांस लेना भी दुश्वार हो गया। अगर ये में चलता रहे तो साल चलता रहे, 6 महीने चलता रहे, ज्यादा टाइम लवे तो ज्यादा वो बदबू तंग करे थी। ये परेशानी सारी जल्दी मुका दे। 40 लाख से ज्यादा आबादी के शहर में कोई नया डंपिंग पॉइंट नहीं बनाया गया। पहले से मौजूद डंपिंग साइट मुकम्मल होने के बाइस बंद कर दी गई थी। रोजाना 700 टन इकट्ठा होने वाला कचरा और गंदगी बाकिराबाद के करीब मौजूद एक बड़े गड्ढे में डाल दिया जाता है। नन्हे बच्चे भी इस कचरे में खेल कूद रहे होते हैं। ये जरासीम फैलते हैं, ठीक है, बच्चों को खांसी वगैरह वो भी होती है। इंतजाम को ये चाहिए जितनी हो सके जल्दी इनको फिल कर दें, ठीक है। डंपिंग पॉइंट न होने से कूड़ा क्रिकेट और गंदगी ने शहर की खूबसूरती को मांद कर दिया है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। डेरा गाजी खान में चोर सरगर्म हो गए। ट्रांसफार्मर की तारें ले उड़े, सिद्दीकाबाद सीवरेज डिस्पोजल बंद और इलाके में गंदा पानी जमा होने लगा। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन उल मुल्क। डीजी खान चोरों को खुली छुट्टी मिल गई। बिजली की तंसीबात भी चोरी होने लगी। सिद्दीकाबाद सीवरेज डिस्पोजल के ट्रांसफार्मर का सामान चोरी कर लिया गया। अमले और अदारे को इल्म तक न हुआ। इलाके में दीगर चोरियों की वारदातें भी बढ़ गईं। अभी तक जो है ना चोरी की कोई रिपोर्ट करने भी नहीं आया। कल मैंने वापडा को फोन भी किया था कि ये ट्रांसफार्मर जो है ना उठा लें, तो उन्होंने कहा जी हम एलएस से बात करते हैं। अब 4 दिन से ट्रांसफार्मर यहाँ इसके अंदर का सामान जो है ना वो निकाल गए हैं, चोरी कर गए हैं, जो इसके अंदर तांबे की कॉइल थी। सीवरेज डिस्पोजल बंद होने से सिद्दीकाबाद में गंदा पानी जमा हो गया। इलाका मकीन मुश्किलात में फंस गए। भाईजान ये पहले रोजाना आते थे इधर, जिस दिन से ये वारदात है ये इसमें से कोई नहीं आया। इधर इतने नट बोल्ट है, सारा कुछ है, किसी व्यवसाय से पूछते हैं क्या हुआ है हमारे घर में, लेकिन कोई नहीं आया इधर। और ये गंदगी निकाल के रख गए। हमारे इधर बच्चे खेलते हैं, सारा पानी हमारे घरों के साथ खड़ा है। ट्रांसफार्मर का सामान चोरी होने से इंतजामिया बेखबर निकली। महको का कहना है कि ट्रांसफार्मर पब्लिक हेल्थ की जाती मलकियत है। शिकायत मौसूल नहीं हुई। दरख्वास्त आई तो देखा जाएगा। डेरा गाजी खान के इलाके सिद्दीकाबाद में चोरी होने वाले इस ट्रांसफार्मर के बाद जहां पर ये चोरी का मामला काफी ज्यादा मुश्किलात पैदा कर रहे हैं लोगों के लिए कि यहां पर सिक्योरिटी नहीं, वहां पर डिस्पोजल बंद होने से घरों तक गंदा पानी भी फैलने का खदशा है। कैमरामैन रेहान अली के साथ मोहसिन उल मुल्क, डेरा गाजी खान। गुलशन मार्केट मुल्तान के ताजिर 4 माह कबल होने वाली 75 लाख की डकैती पर सरापा एहतजाज। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर गुलशन मार्केट चौक ब्लॉक कर दिया। ट्रैफिक रवानी मुतासिर रही। माजिर क्लासरा रिपोर्ट करेंगे। गुलशन मार्केट की ताजिर बिरादरी आपे से बाहर 4 माह कबल होने वाली 75 लाख की डकैती की वारदात के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर रोड बंद कर दिया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। ताजरों का कहना था कि 4 माह हो चुके हैं, चोरी के मुलजमान का सुराग नहीं लगाया जा सका। पुलिस ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गई है। तकरीबन 4 माह गुजर गए हैं, 75 लाख की डकैती ये चोरी हुई है और मुल्तान पुलिस की इतनी बड़ी नाहिली है। हमने सीपीओ साहब से 2 दफा मीटिंग की है, दोनों दफा हमें लॉलीपॉप मिला। अब इतनी बड़ी चोरी की रिकवरी के लिए एएसआई की सरबराही में कमेटी बनाई गई है, जो ताजरों के साथ भूंडा मजाक है। ताजरों ने जमीन पर बैठकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इनका कहना था कि थाना शाह रुकने आलम पुलिस मुलजमान को गिरफ्तार कर रही है और न ही ताजरों से तावन किया जा रहा है। अगर इंसाफ न मिला तो थाने का घेराव करके ये 4 माह से तसल्लियां दे रहे हैं। सीपीओ साहब के ऑपरेशन के पास गए हैं, वो कहते हैं आप बेफिक्र होकर जाएं। हम कैसे सो जाएं, मुझे बताएं। एक इतनी बड़ी मार्केट हो, उधर एक दुकान की है, कल को दूसरी दुकान लुट जाएगी, क्या करेंगे बताएं। गुलशन मार्केट की ताजिर बिरादरी ने वजीर आला पंजाब और वजीर आजम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। गुलशन मार्केट के ताजिर बढ़ती हुई वारदातों पर सरापा एहतजाज हैं और पुलिस से अपील कर रहे हैं कि जो मुलजमान इन वारदातों के पीछे हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त सजाएं दी जाएं। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ माजिद क्लासरा, रोही, मुल्तान। चेयरपर्सन बेनजीर इनका सपोर्ट प्रोग्राम एहसास कफालत प्रोग्राम सानिया नेस्तर की सरगोदा आमद। कहती हैं एहसास प्रोग्राम वज़ीर आज़म की रियासत मदीना के क़याम की ख्वाहिश का अक्कास है। मुल्क भर में 70 जबकि सरगोदा डिवीजन में 28% सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। फसीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। चेयरपर्सन एहसास कफालत प्रोग्राम सानिया निश्तर की सरगोदा आमद। कमिश्नर डॉक्टर फरा मसूद और डिप्टी कमिश्नर नाइला बाकिर ने कमिश्नर ऑफिस में इस्तकबाल किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सानिया निश्तर का कहना था कि घर घर जाकर डिजिटल तरीकाकार से सर्वे किया जा रहा है। ये सर्वे 30 जून को मुकम्मल होगा। पूरे पाकिस्तान में 70%, पंजाब में 54%, सरगोदा डिवीजन में 28%
60% मुकम्मल हो चुका है। आपको ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि एहसास प्रोग्राम में कवायद व ज़वाबित के मुताबिक एक शफाफ तरीके से, एक मुनज़्ज़म और शफाफ तरीके से जो बहुत हकदार लोग होते हैं, बेवाएं, यतीम, माजूर, मजदूर जिनकी दिहाड़ियाँ नहीं होती, बिल्कुल ही मजबूर जो लोग होते हैं, उनकी मदद की जाती है। चेयरपर्सन एहसास कफालत प्रोग्राम सानिया निश्तर का कहना था कि 70 लाख खानदान इसी सर्वे की बुनियाद पर एहसास कफालत प्रोग्राम में शामिल हुए। शिकायत मिलने के बाद सरकारी मुलाजमीन को लिस्टों से खारिज करना शुरू किया गया। चेयरपर्सन ने सरगोदा प्रेस क्लब का भी दौरा किया। उनका कहना था कि मीडिया उनके विजन को आम करे तो मस्बत तब्दीली के असरात बहुत जल्द नुमाया हो सकते हैं। वज़ीर आज़म की सरबराही में हुकूमत बहुत नेक नियती से बहुत दूर रस इस्लाहात इस वक्त कर रही है और इंशाअल्लाह उसके समरात, उसके नतीजे हमारे सामने आएंगे। चेयरपर्सन के मुताबिक सरगोदा डिवीजन में 28% और जिला वाइज भक्कर में 79%, खुशाब में 51%, मियां वाली में 17% सर्वे मुकम्मल हो चुका है। कैमरामैन फिजान खान के साथ फसीउल्लाह, सरगोदा। पीएचए मुल्तान ने सदरन बाईपास पर 700 से जायद सायादार दरख्त लगाने का फैसला कर लिया। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद की जेर निगरानी पीएचए की शजरकारी मुहिम में मजीद तेजी लाई जा रही है। डीजी पीएचए ने अफसरान के हमरा सदरन बाईपास और साहू चौक का दौरा किया। उनका कहना था कि शहर की ग्रीन बेल्ट्स पर भरपूर शजरकारी होगी। शहर भर में सायादार दरख्तों से माहौल में बेहतरी आएगी। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को सरसब्ज और शादाब बनाया जाएगा। हाईकोर्ट बार मुल्तान के इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम जारी। पीपल्स लॉयर्स फोरम के सूबाई सदर शेख कयासुल हक की डेरा गाजी खान बार आमद। वकला बरादरी से मुलाकातें की। सफदर सरसाना के लिए सपोर्ट की गुजारिश की। आशिर अशफाक रिपोर्ट करेंगे। बार मुल्तान के इलेक्शन के लिए भरपूर इंतखाबी मुहिम जारी है। पीपल्स लॉयर्स फोरम के सूबाई सदर शेख कयासुल हक डीजी खान बार पहुंच गए। वकला से मुलाकातें की। डिजर्व करते हैं कि वो यंग आदमी है और दोस्तों के साथ मोहब्बत प्यार उनका ताल्लुक वास्ता है और हम समझते हैं कि वो आइंदा कमिंग इलेक्शन में जो 27 को होने जा रहा है तो उसमें जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। हम यहाँ पे दोस्तों से रिक्वेस्ट करने आए कि उन्हें वोट देकर कामयाब फरमाएं। पीपल्स लॉयर फोरम के वकला का कहना था कि इलेक्शन जमहूरियत का हुस्न है। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर सफदर सरसाना को भरपूर सपोर्ट करेंगे। हमारा एक बहुत सीनियर साथी इलेक्शन लड़ रहा है, जहाँ एक वकील की हैसियत से वहाँ पार्टी की हैसियत से भी हम कोशिश करेंगे कि वो मुंतखब हो, क्योंकि एक तो पार्टी से हट के भी वो एक डिजर्व करता है। सूबाई सदर पीपल्स लॉयर्स फोरम शेख गयासुल हक से साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार सरदार नसीम खोसा, सरदार बहराम बुजदार, साबिक जनरल सेक्रेटरी मलिक बिलाल बोहड़, गुलाम फरीद एडवोकेट और दीगर ने मुलाकातें की और भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। रुख करेंगे बहावलपुर का। बहावलपुर में गंदम की बेहतर निगहदाश्त के लिए सेमिनार और जिला भर से काश्तकार शरीक हुए। रिपोर्ट करेंगे अतर लाशारी। तहकीकाती इदारा बहावलपुर की जानिब से गंदम की बेहतर निगहदाश्त और अच्छी पैदावार के लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सरबराह रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बहावलपुर डॉक्टर लाल हुसैन अख्तर का कहना था कि सेमिनार का मकसद काश्तकारों को गंदम की बेहतर निगहदाश्त और अच्छे तरीके से स्टोर करने बारे आगाही फराहम करना है। आज का जो सेमिनार है इसका बुनियादी मकसद ये है कि गंदम जिस स्टेज पर है इसके बाद हार्वेस्टिंग और स्टोरेज पर जो मराहल हैं उनके मुतल्लिक काश्तकारों को आगाही दी जाए। सेमिनार में डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन रियाज अहमद नाजी ने खसूसी शिरकत की। सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर अरशद बलोच का कहना था कि काश्तकार गंदम पर गैर जरूरी स्प्रे करने से गुरेज करें। कोई ऐसा इशू ना बन जाए आगे, जैसे लॉजिंग है या फर्टिलाइजर की ज्यादती ना हो जाए या कुंगी का खुदा ना खास्ता हमला ना हो जाए। उस हवाले से हमने अपने फार्मर को, अपने किसान भाइयों को कुछ अवेयरनेस के लिए, कुछ प्रैक्टिसेस के मतलब उसके लिए एग्री करने के लिए या कुछ रोकने के लिए वो ये प्रोग्राम हमने अरेंज किया है। सेमिनार में जिला भर से आने वाले काश्तकारों को गंदम की मौजूदा सूरत हाल में अच्छी पैदावार हासिल करने बारे आगाही दी गई। कैमरामैन फराज हमीद के साथ अतर लाशारी, बहावलपुर। मुल्तान में कॉटन सप्लाई चेन के मुतालिक आगाही सेमिनार हुआ। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान बेडशीट्स एंड होजरी एसोसिएशन के सदर ख्वाजा मोहम्मद यूनुस और वाइस चेयरमैन मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां शफी अनीस ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अली रियाज की रिपोर्ट देखिए।
मुल्तान के निजी होटल में एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जेर इंतजाम कॉटन सप्लाई चेन से मुतालिक आगाही सेमिनार हुआ। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान बेड शीट्स एंड होजरीज एसोसिएशन के सदर ख्वाजा मोहम्मद यूनुस और वाइस चेयरमैन मुल्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स मियां शफी अनीस मेहमान खसूसी थे। MPA मलक जहांजेब, सदर पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन जनूबी पंजाब मुख्तार अवान, कंट्री डायरेक्टर ILO मिस इंग्रिड क्रिस्टन ने बजरिया वीडियो कॉल एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के एडवाइजर फसीहुल करीम सिद्दीकी, डायरेक्टर सैयद नजर अली और प्रोजेक्ट कंसल्टेंट नजर जहां ने शिरकत की। सेमिनार का मकसद कॉटन सप्लाई चेन से मुतालिक मसाइल का हल बताना था। कि मैं अप्रिशिएट करूं कि ये काम तो हमारा था, हम जिम्मेदारों का था, हमारे काश्तकारों का था कि हम जो है ना ये इस तरह के सेमिनार करते और कहते कि हमारा जो है ना यहाँ पे जो कॉटन का हाल हो रहा है इसको तवज्जो की जरूरत है। शुरा ने कॉटन के तमाम मसाइल के हल के लिए मुख्य तजावीज पेश की। उनका कहना था कि किसानों के इश्तराक से ज़राए शोबे को फरोग मिल सकता है। ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे सेमिनार्स, ऐसे सिंपोजियम जरूर होने चाहिए क्योंकि कॉटन पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की मानद है और इसको प्रमोट करना बहुत जरूरी है। सेमिनार के इख्तिताम पर मेहमानाने खसूसी को एजाजी शील्ड्स भी दी गई। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, मुल्तान। मुल्तान जिम्नेजियम में बैडमिंटन का मैच खेला गया। मुल्तान की टीम ने मेल्सी की टीम को शिकस्त दे दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बैडमिंटन के फरोग के लिए मुल्तान जिम्नेजियम में मुल्तान और मेल्सी की टीमों के दरमियान मैच खेला गया। दिलचस्प मुकाबले के बाद मुल्तान ने मेल्सी को शिकस्त दे दी। मुल्तान बैडमिंटन क्लब ने पहले 2 राउंड में कामयाबी अपने नाम कर ली। खिलाड़ियों का कहना था कि ऐसे मैचेस होने चाहिए ताकि वो कौमी सतह के मुकाबलों में हिस्सा ले सकें। आज हमारा मेल्सी के साथ भी मैच था, बहुत अच्छा लगा हमें मेल्सी के साथ खेल के, पर इधर इवेंट नहीं होते अच्छे। हम चाहते हैं कि जिला इंतजामिया को चाहिए कि इवेंट करवाएं इधर ताकि हम अच्छी सतह पर खेलें। बैडमिंटन के मैच से शहरी भी खूब लुत्फ अंदोज हुए। सदर फ्रेंड बैडमिंटन का कहना था कि जिला इंतजामिया को चाहिए कि ऐसे मैचेस का इनेकाद करवाए ताकि नौजवान खिलाड़ियों को आगे आने का मौका मिल सके। हमें चाहिए कि जिला इंतजामिया को चाहिए कि हमारे इस खेल को सरपरस्ती करें और कुछ कमियों के कोताहियों के साथ हम जिस तरह खेल पेश कर रहे हैं, एक अच्छे टैलेंट को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे साथी बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है हमारे जिला इंतजामिया की तरफ से। खिलाड़ियों का कहना था कि बैडमिंटन के खेल को फरोग देने के लिए जिले लेवल पर मैचेस करवाए जाएं। बैडमिंटन के खेल को फरोग देने के लिए बैडमिंटन के खिलाड़ियों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि बैडमिंटन के जिलाई सतह पर भी मैचेस का इनेकाद किया जाए ताकि नए नौजवानों को आगे आने का मौका मिल सके। कैमरामैन मोहम्मद हरून के साथ माजिद कलासरा, रोही, मुल्तान। न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।